کوئٹہ کے نواحی علاقے ڈگاری میں کوئلے کی کان بیٹھ جانے کا واقعہ، کئی گھنٹے ہو گئے ملبے تلے دبے، 10 مزدوروں کو نکالا نہ جا سکا۔ ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف۔ شہباز شریف اور خاندان نے امدادی رقم میں خرد برد کی، منی لانڈرنگ کے ذریعے برطانیہ بھیجوائی۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ، ڈیلی میل نے کہا کہ برطانوی حکومت نے زلزلہ متاثرین کے لیے 500 ملین پاؤنڈز دیے، کچھ رقم شہباز فیملی کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی۔ شہباز شریف کے داماد علی عمران کو 10 لاکھ پاؤنڈ ملنے کا الزام۔ مسلم لیگ نون کا برطانوی اخبار کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ۔ شہباز شریف نے کہا عمران خان اور شہزاد اکبر کے کہنے پر جھوٹی سٹوری چھاپی گئی۔ مریم اورنگزیب بولی، صحافی ڈیوڈ روز نے بنی گالا میں عمران خان سے ملاقات کی اور وہیں یہ خبر پلانٹ کی گئی۔ سلمان شہباز نے الزام مسترد کرتے ہوئے رپورٹ کو سیاسی انتقام قرار دے دیا۔ برطانوی صحافی ڈیوڈ روز اپنی خبر پر ڈٹ گئے۔ 92 نیوز کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں شہباز شریف کو برطانوی عدالت سے رجوع کرنے کا چیلنج، کہتے ہیں ان کے پاس اپنی سٹوری کے تمام تر شواہد موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف کی جائیداد کی خبر دی تھی جس پر کوئی ان کے خلاف عدالت نہیں گیا۔ اس کٹپٹلی حکومت کے خلاف ہے۔ 1 سال کے اندر آپ سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ عمران کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، عمران کا ہر نعرہ دھوکا نکلا۔ اور عمران نے کیا کیا؟ عمران نے یو-ٹرن IMF کے سامنے سر جھکا لیا اور ہمارا پورا ملک کا معاشی خودکشی کر لی۔ نئے پاکستان کے نام پر نئی طرز کی آمریت ہے۔ ان کٹ پتلیوں کو فارغ کر کے شفاف الیکشن کے ذریعے عوامی حکومت بنا کر رہیں گے۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کے ورکر کنونشن سے خطاب، مزید بولے کہ 1 سال میں پتہ چل گیا عمران خان کا ہر وعدہ اور نعرہ جھوٹا ہے۔ بجٹ میں ٹیکسوں کا طوفان ہے، امیروں کو NRO مل گیا ہے۔ عالمی ٹرائیبیونل کا ریکارڈک منصوبے پر فیصلہ، 5.9 ارب ڈالر زر تلافی کی ادائیگی کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان کی تحقیقاتی کمیشن بنانے کی ہدایت۔ عمران خان نے کہا ریکارڈک منصوبے کو سبوتاژ کرنے والوں کا تعین کیا جائے، کمیشن معاملے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کا تعین کرے۔ ملک کے 5 بڑے ایئرپورٹس کو جدید ترین ہوائی اڈوں میں بدلنے کی کوششیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے پاکستان کو تعاون کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے مشاورت کے لیے اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ لاہور کے علاقے باٹا پور میں 10 سالہ بچے سے مبینہ زیادتی اور قتل کا معاملہ، پولیس نے والد کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، راولپنڈی کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی امکان۔ ملک کے بالائی علاقوں میں آندھی کے ساتھ مزید مونسون بارش کی پیش گوئی۔ تیز بارشوں کی وجہ سے ہزارہ، راولپنڈی، ڈی جی خان اور کشمیر کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ کراچی میں آج مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ ٹرمپ کا تعصب اور نسل پرستی پر مبنی متنازع بیان۔ امریکی صدر کا غیر ملکی نیاد خواتین اراکین کانگریس کو اپنے ملک واپس جانے کا مشورہ، کہتے ہیں ناکام ممالک سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹ خواتین امریکی حکومت چلانے کا سبق پڑھا رہی ہیں۔
गैरत की भेंट चढ़ाए कंदील को बुझाए 3 साल हो गए। मॉडल कंदील बलोच के कातिलों को 3 साल बाद भी सजा न हो सकी। पुलिस मरकजी मुलजिम वसीम और हक नवाज के खिलाफ चालान जमा करा चुकी है। बासित, जफर, आरिफ और मुफ्ती अब्दुल कवी के खिलाफ भी चालान जमा। कंदील के वालिदैन बेटे को बचाने के लिए मलबा मुफ्ती अब्दुल कवी पर डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अफसोसनाक खबर देंगे कोयटा से। कोयटा का नवाही इलाका है डगारी, जहां पर कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से धमाका हुआ है। जराये के मुताबिक धमाके के बायस कार बैठ जाने से 10 मजदूर मलबे तले दब गए हैं, जबकि 18 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, मगर मजदूरों का जो ताहाल उनको नहीं निकाला जा सका। कोयटा के नवाही इलाके डगारी में कोयला कान में जहरीली गैस भरने से धमाका हुआ है। इसी पर बात करेंगे। फजल तवाब हमारे साथ मौजूद हैं। फजल, बताइएगा कितने लोग अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं? इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि ये कोयटा से तकरीबन किलोमीटर के मसाफत पर डगारी का ये इलाका है। यहाँ पर गुज़िश्ता रोज से लेकर अब तक 18 घंटे गुजर चुके हैं कि इस कोयला कान में जो पसे मजदूर हैं उन्हें अब तक रेस्क्यू नहीं किया गया। यहाँ पर जो कोयला कान के कांकुन हैं उनसे हमने बात की तो उनका यही कहना था कि जो कोयला कान है यहाँ पर तकरीबन 3000 फुट के गहराई पर वो जो पसे मजदूर है वो वहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि वहां पर एक जहरीली गैस जमा हो गई थी जिसके बाद धमाका हुआ। साथ ही साथ मजदूरों का ये भी कहना है कि बदकिस्मती से इससे पहले भी इस तरह के नाखुशगवार वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, मगर हुकूमत और जो कोयला कान के ओनर है और ठेकेदार है उसकी जानिब से उस तरह की सहूलियात फराहम नहीं की जाती है। आज भी एक इस तरह का अफसोसनाक वाकया रूनुमा हो चुका है। 18 घंटे गुजर चुके हैं, अब तक ना जिले इंतजामिया ना ही हुकूमती कोई नुमाइंदा यहाँ पे नजर आया है। ताहम दूसरी जानिब जो महकमा माइंस एंड मिनरल है उनके मेंबरान यहाँ पर हमने देखे कि वो यहाँ पर मौजूद है, मगर अब से कुछ लम्हे पहले जो है वो अब यहाँ पर कोयला कान में वो अंदर दाखिल हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दाखिल हुए हैं। उनका ये कहना है कि कोयला कान में जो है जहरीली गैस जमा है, जिसकी वजह से अंदर जाना जो है वो किसी खतरे से बाहर नहीं है। दूसरी जानिब जो अंदर फंसे मजदूर हैं उनके जो साथी हैं वो यहाँ पर उन्होंने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए ये कहा कि हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदा रहा जो कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोयला कान है वहाँ पर वो तमाम एहतियाती तदाबीर, वो तमाम सहूलियात हमें फराहम किया जाए। उनका साथ में ये भी कहना था कि यहाँ पर गुज़िश्ता रोज से अब तक 18 घंटे गुजर गए, हमारे पास यहाँ पे पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं है और ना ही हमारे पास वो सहूलियात मौजूद है और ना ही हमें इस कोयला कान के अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि हमने सालों हम यहाँ पर काम करते हैं, हमें तजर्बात हासिल है। लिहाजा हम जो महकमा माइंस एंड मिनरल के जो यहाँ पे अफसरान हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए ताकि हम अपने जो फंसे दोस्त है, जो फंसे साथी हैं उन्हें फौरी तौर पर निकाले। जी, कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से यह धमाका हुआ है और ज़राए के मुताबिक धमाके के बायस कान बैठ जाने से 10 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। 18 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, मगर मजदूरों को ताहाल नहीं निकाला जा सका। फजल तवाब, इस मुतालिक आपसे मज़ीद अपडेट्स मिलेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों ने सहूलियात की अदम फराहमी का शिकवा कर दिया है। कहते हैं कान मालिकान की जानिब से उन्हें कोई सहूलियात नहीं दी जाती। आप भी जानिए वो मजीद क्या कहते हैं। कल ये केबल में आग लग गई थी, अभी तक तकरीबन 17 घंटे हो गई। जो बंदे अंदर फंसा हुआ है इसका इंतज़ाम नहीं है, जो रेस्क्यू वाला आया इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। अभी पूरी तौर पर 2 पंखे का ज़रूरत है, इसके पास पंखा भी नहीं है। तकरीबन 2-4-5 घंटे केबल का इंतज़ार था, अभी केबल आया है लेकिन 2 पंखे का पूरी तौर ज़रूरत है, उसने केबल नहीं लाया। हम ज़िले हुकूमत से ये दरख्वास्त करते हैं कि इन बेचारे लोगों का हाल पुरसान करे। लोग नीचे जाते हैं, बोतल नहीं है, दूसरा चीज़ नहीं है, सरकार ने एक चीज़ बनाई है। 8 आदमी एक खानदान से है, 2 आदमी दूसरा खानदान से, ये लोग ऐसा बोलते हैं। या हम लोग दूर अफगानिस्तान, हम लोग स्वाद वाला है या अफगानिस्तान वाला है। ये यहाँ केबल जल गई सर, केबल से ये वाक़या बन गया। नीचे अभी मेन बराबर है, सिर्फ यहाँ 1000 फुट में गैस जमा होता है, वो गैस भी सेट से आग निकला हुआ है और इंशाल्लाह ताला नीचे लेवल है सही है। अब इंशाल्लाह उम्मीद ये है यहाँ हम लोग ये मेन में स्टाफ बंदे वहाँ मेन से गरमाई निकाले, वहाँ से ठंडा दे निकल जाएगा ये बंदे। और आज क्या हुआ है?
आज नहीं हो गया, कल इसमें धमाका हो गया, केबल जल गया, गैस आ गया, 10 आदमी फंस गया नीचे, बाकी लोग निकल गया। अभी कल का हम लोग लग गया है, लेकिन नहीं निकल सकता है, रास्ता बंद है, धुआं है गैस से। नीचे तो बिजली जल गई ना, तो 2 डीप में पैदल आना पड़ा। तो ये बेचारे भी तो अपना कोशिश किया, अभी पता नहीं डीप में पड़े हुए, निचले हलज में पड़े हुए, कोशिश से सारे लोग बाहर आने लगे। तो 2 डीप वाले पहुंच गए, यही डीप वाले फंस गए। बस भाई पहले तो बस यही बहुत चंद लेज़ों में बहुत हादसे हो गए, लेकिन ये लेज़ में कभी हादसा नहीं आया था ना, बस यही पहली मरतबा।